Well, dear students, actually we have a target. So let's understand about the PN junction diode. And as in my previous lecture, in the previous introduction, you could be able to understand that electronics is everywhere and that electronics is just creating miracles for us. It is helping to make a device faster. It is helping to reduce the size of a device. It is exactly so like it's doing a miracle in today's world. We see everything we use, it has a small area incorporated in it. It is in electronics. It means you can say that if a device is a body, then its heart and its brain is electronics. So now the electronics has become a heart or brain who is driving the whole body of a device. Whether it's a refrigerator, whether it is your washing machine. Nowadays we are having ACs, even the fans and the LEDs connected with it. All of these are now just conducted and controlled by the electronics. So among all these ones, so let's begin with. First of all, we have already discussed about that and you have already gone through that. We have semiconductor materials. And with the help of the semiconductor materials, we can create a specific and very simplest kind of a device which is called as a PN junction diode. So today we are going to have a discussion on this PN junction diode and let's understand how this PN junction diode it really works upon and what exactly it is. This is our today's topic. So PN junction diode. So let's beginning with this one. So we know that a particular material which is a semiconductor can be of two types. First, intrinsic and second, extrinsic. Intrinsic type of material are having an equal amount of charge carrier like number of holes and number of electrons. But if you want to increase any charge carrier concentration, you have to create an extrinsic type of semiconductor material. And that extrinsic type of semiconductor material helps you to create N-type and P-type material. And N-type and P-type material are different by means of their property. So we created two different kind of semiconductor and those semiconductors are helping us to really improve the performance of a device. Now, we were having separately P-type, we were having separately N-type. We say N-types are electrons. N-type material में electrons हैं and those electrons are helping with high conductivity. Talking about the holes, they are also conducting, लेकिन उनकी mobility कम थी. So now let's see if suppose we have a combinational effect. Combinational effect का मतलब now we're connecting them. We're just combining them, their effects. If we talk about their effects of PN junction, so we created this one. So what we have just taken? We have just taken simply a semiconductor material, simply a semiconductor material. And in that semiconductor material, when it is diffused with one type, suppose you have a piece of semiconductor material and you're diffusing it from the one type of doping, whether it is an acceptor or a donor. So that upper layer will be created like another type. So that happens. If suppose you have just taken a simply N type of material and under the N type of material you are doping here this P type of acceptor type of impurities and that acceptor type of impurities are introduced within these and it creates a layer. ये क्या बनाएगा एक layer बनाएगा एक simple सा piece है. If suppose you have a simple piece of semiconductor like anything you have a simple piece is here. You will take like an example of this one. If you see here अगर आपने ये example लिया है तो इस example में आपने एक semiconductor material piece लिया. इस semiconductor piece of material को इस side से आपने N type डिफ्यूज किया और ये आपका P सबस्ट्रेट है. इसकी वजह से एक इस तरीके से जंक्शन क्रिएट होगा. दिख रहा है ना ब्लू पार्ट ये दैट इज द सेम. ये आपको दिखाया जा रहा है इस तरीके से स्क्रीन पर व्हाट यू आर वाचिंग इट लुक्स लाइक दिस. तो ये जो पार्ट क्रिएट हुआ दैट इज कॉल्ड जंक्शन बिकॉज़ हियर इट साइड P and here it is side what N. So this kind of a situation happens here and appears like this one and this junction is called as a PN junction. Once such junction is being created, then it performs
effectiveness of the charge carrier movement. Let's see what exactly this one. So here we go for this slide. If we understand, we have n-type material, we have p-type material. So n-type material are having majority charge carriers as electron. Important, n-type में कौन से होते हैं majority charge carriers? Electrons होते हैं. p-type में कौन से charge carriers होते हैं? Holes होते हैं majority. Minority दोनों में होंगे. n-type में minority मतलब कम, minority मतलब कम. n-type में minority कौन होंगे? n-type में minority होंगे holes. Holes कम होंगे, electrons. p-type में कौन होगा? p-type में होल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का. ये जब मिलते हैं तो नाउ such situation comes and this junction is called as a p-n junction. So I'm just pausing it here and making this session open. So if anybody has, if we see here in this section, so we know that under this situation we have free electrons in the n region and we have holes in this region. So if we move on to the next slide, then we see something happens where different type of semiconductors and they are combining with each other, एक दूसरे के साथ जोड़े गए, and there should be something, कुछ ना कुछ phenomena तो होंगे. What exactly that phenomena? So first of all, very first phenomena which is being coming up here is diffusion. आपको याद रखना ये word, this is a very very important word, diffusion. Diffusion is a process जिसमें high concentration से low concentration की तरफ itself movement होता है. When electron starts moving from high concentration to low concentration and it is called as a diffusion. और ये diffusion का सबसे अच्छा एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल आपको मिलता है. आप जब डीओ स्प्रे करते हो, आपने कमरे के कोने में डीओ का स्प्रे किया, वन एट द सेकंड सेक्शन दूसरे कॉर्नर में, वहां पर जहां कोई नहीं था उसको फ्रेग्रेंस आता है. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्यों? क्योंकि डीओ के जो बेसिकली पार्टिकल्स थे, जो कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल्स थे, ये यहाँ जाता थे. धीरे 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 ये डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गया एंड डिफ्यूजिंग बाय दिस इट इज रीचिंग. So all kind of a smells, all kind of a dispersion of gases, number of the process are there जहाँ पे ये diffusion का process होता है. हर चीज के साथ यही होता है. जो चीज सपोज करो आपने मिल्क और वाटर को मिलाते हैं, तो मिल्क और वाटर को अगर मिक्स भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो मिल्क और वाटर इजीली मैच अप हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन मिल्क वाटर की तरफ डिफ्यूज होना स्टार्ट करता है. तो ये डिफ्यूजन इज अ सेल्फ एंड नेचुरल प्रोसेस. सो वेयर व्हाट हैपेंस, जैसे ही इनको आपस में कनेक्ट करते हैं दे स्टार्ट डिफ्यूजिंग n, क्योंकि n यहाँ पर n में मेजॉरिटी है और p में मिनॉरिटी है. p में जो n है इलेक्ट्रॉन्स कम है और n में जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ चलना स्टार्ट करते थे. सिमिलरली p टाइप में जो होल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और n टाइप के अंदर होल्स कम है क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो यहां से यहां चलना है. When they starts moving, जब स्टार्ट करते हैं मूवमेंट, अब ऐसा मूवमेंट अगर हो गया तो वो इधर से इधर जाएंगे और कुछ टाइम बाद अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे. एन टाइप मटेरियल एन टाइप नहीं रहेगा, पी टाइप नहीं रहेगा. तो इस सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि जब हम कोई कॉज क्रिएट करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट कॉज, उस कॉज की वजह से, उस कॉज की वजह से इफेक्ट्स जनरेट होते हैं जो उस कॉज को अपोज करते हैं. मतलब जो चीज जिसकी वजह से जनरेट होती है वो उसी को अपोज करती है. तो जब ये फिनोमेना क्रिएट हुआ, व्हेन दैट सच सिचुएशन हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो इसकी वजह से चार्ज शिफ्ट हुआ. तो इसका मतलब है कि यहां से चार्ज चेंज होने का मतलब है आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस. जब भी एक चार्ज क्यूब अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो इट शिफ्ट सम पोटेंशियल. सो फ्रॉम स्टार्टिंग, जैसे ही स्टार्ट होता है थोड़ा सा चार्ज मूवमेंट स्टार्ट ही होता है, लाइक a few starts moving from n to p and p to n, थोड़ा स्टार्ट हुआ वहीं पर वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है. एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल बैरियर बिकॉज जिसकी वजह से जनरेट हुआ इट अपोजेस दैट. If you see here in this one, so here we have all the positive potential because the electrons are shifts here. तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो it creates a positive charge. और यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आए तो it has a negative. So now what happens further, ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा, आप आने नहीं देगा. कहेगा नो आई एम हैविंग अ नेगेटिव चार्ज हियर, यू आर नॉट अलाउड. क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन क्रिएट करते हैं. तो ये बेचारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर हैं दे स्टे हियर. होल्स जो है उनको पॉजिटिव चार्ज रिफ्लेक्ट करेगा, कहता नहीं यू कैन नॉट गो देयर, आप नहीं जा सकते. जब उनको मना करेगा तो ये यहाँ जाएंगे. एक ऐसा सेक्शन बन जाएगा जंक्शन पर, एक ऐसा सेक्शन बन जाएगा जहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होगा. सी इंपॉर्टेंट जंक्शन. एंड धीरे धीरे वहां पे क्या जनरेट हुआ, पोटेंशियल बैरियर. एंड पोटेंशियल बैरियर एक ऐसा रीजन क्रिएट कर देगा जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा.
So important, what is most important part in this slide? In this slide, first point जो याद रखना है, that is diffusion. क्या याद रखना है? Diffusion phenomena होता है जैसे P और N junction को मिलाते हैं. First important part, diffusion. Second important part क्या है? Second important part है diffusion के बाद क्या होगा? Potential barrier generate होगा. Important. तो पहला phenomena होगा P N junction को मिलाते हैं diffusion, याद रखना है. दूसरा phenomena याद रखना है, potential barrier create होगा. तीसरा फिनोमेना याद रखना है स्लाइड में जो क्रिएट हो रहा है, डिप्लीशन रीजन, अ रीजन इन विच नो चार्ज कैरियर फाउंड, फ्री स्पेस जहां पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होगा, सिर्फ क्रिस्टल का लैटिस होगा. तो थ्री फिनोमेना इस स्लाइड से क्लियर होते हैं, दैट वी शुड नो दैट फर्स्ट डिफ्यूजन, सेकंड इज द पोटेंशियल बैरियर एंड थर्ड इज द डिप्लीशन बैरियर. सो दैट सिचुएशन हैपेंस इन नेचुरली फाउंड पीएन जंक्शन. जैसे आप सेमीकंडक्टर उठा के लाएंगे, पीएन जंक्शन डायोड लेके आएंगे, तो आपको ये वाली स्टेट आपको मिलेगी. दैट्स एग्जैक्टली द इंपॉर्टेंट पार्ट. Coming up with this one, so finally we got three terminology: one diffusion, second potential barrier, and third is a depletion reason. So we got that. So whenever we have a diode, whenever we have a free diode, like मैन्युफैक्चरर से आप खरीद के लाए, दुकान से आप डायोड खरीद के लाए, तो डायोड के अंदर ये स्टेट आपको मिलेगी. पी अलग होंगे, मतलब पी में होल्स होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बीच में डिप्लीशन रीजन होंगी, ऐसा आपको डायोड मिलेगा. ये स्टेट आपको मिलेगी. दिस इज कॉल्ड एज अ जीरो बायस स्टेट. क्या कहते हैं इसको? जीरो बायस. इस वक्त कुछ भी कनेक्ट नहीं है, नो बायसिंग, नो एक्सटर्नल सप्लाई, पोटेंशियल बैरियर इफेक्टिव होता है. ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है, ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है. सिलिकॉन के केस में ये 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होता है रूम टेम्परेचर. क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, पता है आपको, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है इनकी कंडक्टिविटी पे. सो इफ यू गो टू दिस लास्ट लाइन, 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम में 25 डिग्री सेल्सियस, और 25-27 डिग्री सेल्सियस को भी एज्यूम दैट इट इज अ रूम टेम्परेचर. हम ये मान के चलते हैं ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिली जो मैंने आपको बताया. साथ में एक और फर्क पड़ता है, ये एनर्जी बैंड गैप डायग्राम्स होते हैं. आप जानते हैं, यू नो दैट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, यू हैव गॉन थ्रू, कि जब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात की जाती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बीच में दो तरीके के एनर्जी बैंड है, वैलेंसी और कंडक्शन. तो कंडक्शन बैंड में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बैंड में होते हैं होल्स. सो वी हैव कंडक्शन एंड वैलेंसी. अब पी टाइप एंड एन टाइप, इन दोनों को मिला है, क्या इनके एनर्जी बैंड सेम होते हैं? नो, दे हैव अ डिफरेंस. So if you see here in N region, the conduction band is at the lower side and valency band is again the lower side. When we are matching them, that kind of a tunneling happens. And when that tunneling happens, तो जो electrons होते हैं इसके N-type material के, वो electrons N-type material के P-type material के conduction band में जाते हैं. इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की लेयर में N टाइप से, और जो होल्स होंगे दैट लाइज इन वैलेंसी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक केयर अबाउट दैट. होल्स ऑलवेज ट्रैवल्स इन वैलेंसी बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रैवल्स इन कंडक्शन बैंड. तो जो होल्स हैं वैलेंसी बैंड में, वो पी टाइप मटेरियल की, यू सी हियर, पी टाइप मटेरियल के वैलेंसी बैंड से एन टाइप मटेरियल के कंडक्शन बैंड तक मूवमेंट. तो ये कंडक्शन टू कंडक्शन, ये जब हम इस तरीके से देखते हैं तो इनके एनर्जी गैप में इट्स एक्ट्स लाइक अ लोअरिंग एंड टनलिंग हैज बीन क्रिएटेड, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इधर-उधर जा पाते हैं. दिस हैपेंस इफ वी आर टॉकिंग ऑन द एनर्जी रिलेशनशिप. अगर हम एनर्जी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये चीज हमें यहाँ पर समझ में. ठीक है, तो कहते हैं ना कि कैसे एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे डिफ्यूज हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं. दिस इज अ फिनोमेना. इस तरीके से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पी की साइड जाते हैं और होल्स जो है वो ये मूवमेंट स्टार्ट. दैट्स एग्जैक्टली द मूवमेंट ऑफ दिस. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द बायसिंग पार्ट. So that exactly we have taken, like that's important part because it's a part of the lab also. Biasing. अब डायोड आप फ्री स्टेट में लेके आ गए, मार्केट से खरीद लाए, ठीक है. व्हाट यू आर गोइंग टू डू दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि डायोड का यूज क्या है. मैं तीन चीजों पे हमेशा बात करते हैं, व्हाट, व्हाई एंड वेयर. अब हमें ये समझना है कि सबसे पहले हमने डायोड बनाया ही क्यों है. व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस डायोड, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, बना क्यों रहे हैं.
तो डायोड का जो सबसे बड़ा यूज मिला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर वो मिला एज अ स्विच, ऑटोमेटिक स्विच। ऑटोमेटिक स्विच इट मींस ये करंट को पास होने देगा एक बार में और रोक देगा दूसरी बार में। इट मींस एक ऐसा तरीका इसको यूज करने का कि ये करंट को पास भी होने दे और करंट को रोक भी। सो द थिंग व्हिच कैन मेक अ करंट ऑन एंड ऑफ इज कॉल्ड एज स्विच। तो बन गया इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द यूटिलिटी, व्हाई द डायोड इज हियर, भाई क्यों है डायोड, तो आपका पहला आंसर होना चाहिए, हमेशा आप आंसर देंगे व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, मे बी आस्क इन इंटरव्यूज टू, कि भाई पता है ये डायोड की जरूरत ही क्यों पड़ी, कि हमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच चाहिए। एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच किस टाइप का, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्विच चाहिए था जो करंट कंट्रोल, जो करंट से कंट्रोल हो जाए, अपने आप ही कंट्रोल हो जाए, इट मींस ऑन हो जाए और ऑफ हो जाए। तो कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ बाय। वेयर कहाँ यूज करते हैं, हर जगह। जितनी भी ऑटोमेटिक चीजें होती हैं अपने आप से ऑन हो जाती हैं, अपने आप से ऑफ हो जाती है। एसी, जैसे ही टेम्परेचर आपके घर का 27 डिग्री 28 डिग्री होता है, वो कंप्रेसर ऑन करता है, ठंडी हवा देना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही वो जाता है 16 डिग्री 17, कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। ये ठीक है। माइक्रोवेव आपने ऑन कर दिया, 10 सेकंड का टाइमर लगा दिया, 10 सेकंड बाद ऑफ हो गया। वो टच नहीं कर रहे हो आप, उसका प्लग नहीं निकाल रहे हो, नथिंग यू आर डूइंग अप हियर, बट इट्स वर्किंग ऑन दैट। तो जब ये सिचुएशन आती है जहां पर ऑटोमेशन आ जाता है, वहां पर स्विचेस काम आते हैं। स्विचेस अपने आप ऑपरेट करते हैं, मेक इट ऑन मेक इट ऑफ। तो वेयर समझ में आ गया। तो मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग की जरूरत है वहां पे हमारा डायोड इस्तेमाल होता है फ्रीली। ठीक। तो हमने बात कर ली वाई की, वेयर की बात कर ली, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एंड व्हाट इज नाउ कनेक्शन। कनेक्शन कैसे कैसे भाई अब ये काम करेगा स्विच की तरह से। तो डायोड को हम हमेशा तीन तरीके से यूज करते हैं और तीन टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं साइंस के अंदर, इन टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग। पहला, जब डायोड किसी भी चीज से कनेक्टेड ना हो, फ्री है, तो वी कॉल इट जीरो बाइस। इंपॉर्टेंट, जब डायोड कभी भी किसी भी कनेक्शन से ना कनेक्ट हो, फ्री रखा है, वी कॉल्ड इट जीरो बायस। सेकंड, जब डायोड को हम एक्सटर्नली, when we are connecting this diode with external voltage, external battery, external supply। अब इस सप्लाई से कनेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, बिकॉज सप्लाई हैज टू टर्मिनल, प्लस एंड माइनस। आप प्लस माइनस ऐसे कनेक्ट कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, एंड डायोड हैज टू टर्मिनल, P और N। So when you are connecting this P to positive, important, when you are connecting P of diode with the positive of battery, PP, N, N, see here, P, P type material connected with the positive, N type material connected with the negative, PP, N, N, this connection type is called as a forward biased। अब होगा क्या, जैसे ही आपने इसको फॉरवर्ड वाइज किया कुछ इफेक्ट्स आने चाहिए ना, क्या इफेक्ट्स आएंगे, जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो डायोड में यहाँ पर होल्स हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो होल्स होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या लेंगे, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन लेंगे। ये इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल्शन लेने के बाद यहाँ से भागेंगे, किधर भागेंगे, टर्मिनल से दूर भागेंगे। किस तरफ भागेंगे, जंक्शन की तरफ भागेंगे। दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, ये जंक्शन की तरफ अपना मूवमेंट स्टार्ट। सिमिलरली एन जो है वो भी जंक्शन की तरफ भागेंगे, लेकिन जंक्शन पे कौन है, बैरियर। इस टाइप का बैरियर जैसे रेलवे क्रॉसिंग होती है, दोनों लोग रेलवे क्रॉसिंग इधर उधर पार करना चाहते हैं पर बैरियर लगा हुआ है। अब बैरियर हटाना है, बैरियर किस चीज का बना हुआ है, लोहे का गेट हो तो तोड़ के नहीं तोड़ दो, लोहे का नहीं है तो तोड़ना नहीं है ना, तो व्हाट वी कैन डू दैट, द बैरियर इज मेड अप ऑफ पोटेंशियल, वोल्टेज का बना हुआ है। तो जब आप इस वोल्टेज को इतना बढ़ा देते हैं, इतना सफिशिएंटली लार्ज कर देते हैं कि ये इस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाए, तब जंक्शन पर ये बैरियर खत्म हो जाता है, फिनिश अप हो जाता है। और बैरियर जैसे ही खत्म होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा था ना, कंडक्शन बैंड टू कंडक्शन, वैलेंसी बैंड टू वैलेंसी बैंड दौड़ने लगते हैं, ये स्टार्ट्स मूविंग। जैसे ये दौड़ते हैं तो चार्ज कैरियर्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इट इज अ स्विच, नाउ इट इज अ स्विच। क्या कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के लिए क्या करना है, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाना है। कितना लगाना है, सिर्फ उतना लगाना है जितना बैरियर है उससे ज्यादा। कितना ज्यादा, 0.7 है सिलिकॉन के केस में एंड 0.3 द जर्मेनियम। तो अगर आपने 0.7 से ऊपर वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट कर दिया, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा लगा दिया, तो यू वुड बी एबल टू मेक इट अ ऑन स्विच और यहाँ से यहाँ चार्ज कैरियर्स को मूव करें। सिमिलरली अगर हम इसको अपोजिट फॉर्म में लेते हैं, tracking in the just opposite to this one,
Now what we are doing now in the situation, what we are creating, the same diode वही है, but the same diode is now connected in the opposite. अब now we are not connecting P to P. P is connected with the N. उल्टा कर दिया बैटरी को, है ना, ऐसे था फिर ऐसे कर दिया. तो P को कनेक्ट किया किससे? N से कनेक्ट किया, नेगेटिव से कनेक्ट किया. N को किससे कनेक्ट किया? पॉजिटिव से. अब P में होल्स हैं, पॉजिटिव हैं, बाहर कौन है? नेगेटिव है, अट्रैक्शन. इसकी तरफ, इसकी तरफ, बाहर की तरफ. N में इधर की तरफ. मतलब जो इधर उधर बैठे हुए थे दोनों, वो इधर भागने की कोशिश करेंगे, वो इधर भागने की कोशिश करेंगे. व्हाट हैपेंस टू द जंक्शन? जंक्शन पर जो डिप्लीशन रीजन क्रिएटेड है, वो जंक्शन पे डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा. और जब जंक्शन पे डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा तो पोटेंशियल बैरियर कहेगा वाओ मैं तो स्ट्रांग हो गया. मतलब एक बैरियर तो लगा ही था रेलवे क्रॉसिंग पे, एक और बैरियर लग गया, बढ़ गई. बैरियर की वैल्यू बढ़ गई और ये और दूर होते गए. जब ये दूर होते गए देन व्हाट हैपेंस? ये चार्ज कैरियर यहाँ के यहाँ जा पाएंगे, यहाँ के यहाँ जा पाएंगे? नहीं. जब चार्ज कैरियर इधर से उधर जाएंगे ही नहीं, हु विल कंडक्ट द करंट? नथिंग इज पॉसिबल. इन दिस सिचुएशन इट विल बिकम ऑफ. हम क्या कहेंगे? डायोड हमारा ऑफ हो गया, या क्या कहेंगे? डायोड हमारा रिवर्स बायस हो गया, है ना. ये सिचुएशन आएगी. अंडर दिस सिचुएशन वी कैन से नाउ इट हैज बिकम द ऑफ सिचुएशन. ऑन फॉरवर्ड बायस, ऑफ रिवर्स बायस. ऑन डिप्लीशन रीजन रिमूवल, डिप्लीशन रीजन का खत्म होना, वैनिश, इसको वैनिश वर्ड यूज किया जाता है, वैनिश होना, खत्म हो जाना. तो रीजन, डिप्लीशन रीजन वैनिश्ड आउट. और सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में डिप्लीशन रीजन का बढ़ जाना, रिवर्स बायस हो जाना, ऑफ हो जाना. पहले केस में रेजिस्टेंस कम होना, दूसरे केस में रेजिस्टेंस बढ़ना. So multiple aspects are there related with the forward bias and the reverse bias of the diode. If we see here, under this situation, depletion region has become too much. पर क्योंकि डायोड के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, पी रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और एन रीजन में कुछ होल्स भी होंगे. ये जो पी और एन रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ होल्स हैं, इनको लगेगा दैट ये तो कुछ फेवरेबल सिचुएशन फॉर अस, ये तो हमारे लिए अच्छा है. भाई हम तो पी के इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिव से दूर भागेंगे, एन के होल्स हैं, दूर भागेंगे, ये जंक्शन क्रॉस कर जाएंगे. तो बहुत क्योंकि कम होते हैं. अगर मान के चलो इफ वी हैव मिलियंस ऑफ लाइक मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इट इज ओनली अबाउट फ्यू टेंस, लाइक 10 20 30, इतने कम होते हैं. तो जब ये होते हैं तो क्या होता है? रिवर्स वाइज सिचुएशन में बहुत ना के बराबर स्मॉल करंट फ्लो करता है, व्हिच इज कॉल्ड एज अ लीकेज करंट. फ्लो करता है, लीकेज करंट फ्लो करता है. दैट्स इंपॉर्टेंट, याद रखना है. क्या लीकेज करंट फ्लो करता है? रिवर्स वाइज करंट. कोई पूछता है क्यों करता है? आंसर इज भाई पी टाइप और एन टाइप में दोनों में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, उनके लिए तो उल्टे ही होगा. जब उनके लिए रिवर्स सिचुएशन होगी तो इसका मतलब वो फ्लो करेंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो जब हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट किया, दैट वी हैव ऑलरेडी प्लॉटेड, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट किया तो हमें पता चला ये सिचुएशन है. इसी है हमने देखा फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में करंट धीमे 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 बढ़ता है. कब तक बढ़ता है धीमे धीमे? जब तक 0.7 ना हो जाए, और फिर एकदम तेजी से बढ़ जाता है. रिवर्स वाइज में करंट ना के बराबर होता है क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की है. इफ वी गो बैक, हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत कम करंट है, लीकेज करंट है, ना के बराबर, किसी काम का नहीं है. बल्ब भी लगा दो ना अपोजिट में, एक एलईडी भी नहीं चला पाएगा क्योंकि ऑर्डर कितना? माइक्रो एम्पियर. माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻⁶, इतना कम करंट. सो इट हैज नो यूज, कोई यूज ही नहीं है उसका, लेकिन फ्लो करता है तो दिखाना पड़ेगा एक्चुअल में. तो ये होता है. अब ये सिचुएशन बन जाती है रिवर्स वाइज की और ये सिचुएशन बनती है फॉरवर्ड. इस तरीके से आई एम जस्ट कंक्लूडिंग माय टुडेस सेशन. आई एम सिंपली गिविंग एन आइडिया व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू फर्स्ट थिंग, सबसे सिंपलेस्ट सबसे इजीएस्ट डिवाइस जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को से बनाई जाती है वो कहलाती है पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पी टाइप और एन टाइप मटेरियल, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स होते हैं और ये पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स मिलके पीएन जंक्शन क्रिएट. जैसे ही हम जंक्शन क्रिएट करते हैं, well I'm concluding this whole session, पूरा सेशन में कंक्लूड कर रहा हूँ. all must listen this carefully, ध्यान से सुनना है सभी को. हमने स्टार्ट किया पीएन जंक्शन डायोड. क्यों बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड? क्योंकि पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल मिलते हैं और जहां जुड़ते हैं वहां पे क्या रहता है? जंक्शन. दिस इज व्हाट पीएन जंक्शन डायोड. डायोड क्योंकि दो टर्मिनल, देख क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के. डायोड दो टर्मिनल, दो इलेक्ट्रोड. ठीक.
फिनोमेना जैसे ही इनको मिलाएंगे सबसे पहला फिनोमेना जनरेट होगा, वो कहलाएगा आपका इंपॉर्टेंट फिनोमेना डिफ्यूजन। इनमें डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। एन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, होल कम होते हैं। पी में होल्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ये सेल्फ मूवमेंट कहलाएगा आपका डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन से क्या जनरेट होगा? इस डिफ्यूजन से जनरेट होगा पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन आप इधर रहो, होल आप इधर रहो, आप दोनों अलग अलग रहो, डिप्लीशन रीजन। अब इस डायोड को उठा के हम लेके आए, हमने कहा फिर उसको वायर से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट किया, सप्लाई दी। सप्लाई दो तरह से कनेक्ट होती है, प्लस इधर माइनस इधर, या माइनस इधर प्लस इधर। एक कह रहा है फॉरवर्ड बाइस, दूसरा कह रहा है रिवर्स बाइस। Under the forward bias situation, when we have the forward bias situation, तो under this forward bias situation, diode has become on कहलाता है, और reverse bias situation में diode off कहलाता है। On और off करने में diode को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी। So this is exactly the today's lecture concluded here. Now I'm just making the session completely open to just have a discussion in any